Hello student, welcome back to our channel. This is Jyoti Patel from Tapoan Group of School. Today we are going to our new lesson, chapter number 10, Agriculture. Agriculture part 1. Let's get started our new learning objectives. Which one is? Only two our learning objectives here. First of all, introduction. Then after, types of farming. Let's go. Our first point is that introduction. Agriculture. What is agriculture? The science or practice of farming, including cultivation of the soil for the growing of crops and the rearing of animals to provide food, wool, and other products. It is a scientific and practice of farming which include cultivation of the soil and for the growing of the crops and rearing of animals to provide food, wool and other products, which is known as agriculture. Next we are going to discuss about agriculture in India. I can give the basic information regarding agriculture. It is very important for knowing about that, and I give also some points which is very basic information that the agriculture is the important source of India because of about 60% of the labor is engaged in agriculture. Agriculture occupied about 22% of the national product, and it also 18% contribution in export, which is a huge foreign exchange. It's great percentage in our economic result. In here, India is an agricultural important country. You know very well, our India is agricultural country. Next, agriculture product most of the food that we consume. Our daily routine and our daily foods which are consumed by us, which is directly and indirectly connected to agriculture. Next point. Agriculture also produce raw material for various industry. For example, if uh, we get orange juice which is produced in industry, but their raw material like fruits, that is the raw material they can get in agriculture. So we can say that our agriculture is give raw material for various industry. Did you know the India is second in the world in crop output, next to China? That means China is the first producing crops output and second is India. Second point is that 1.4 million square kilometer of land in India is under cultivation. Third point, agriculture is India's biggest economic sector and employed 52.1% of total force. You can say that 52% employees are engaged in agriculture sector. Next is that our next point is types of farming, which is there are four types of farming. First, primitive subsistence farming. Second, intensive subsistence farming. Third, commercial farming.
Fourth, plantation farming. Primitive subsistence farming. This types of farming is still practiced in few places in India. It is practiced on small pitches which the help of the primitive tools like a hook, dove and digging sticks and family or communities labor. These types of farming depend upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of the other environmental condition. Primitiव्स दैट मीन स्टूडेंट प्राचीन एंड सब्सिस्टेंस मतलब कि जीवन निर्वाह और फार्मिंग मतलब आपको पता ही है खेती। जीवन निर्वाह के लिए की जाने वाली प्राचीन खेती। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी हमारी प्राचीन तौर तरीकों वाली खेती है जहाँ पे लोग पुराने जो टूल्स होते हैं जैसे खुदाई के लिए जो उनके दाव होता है, ड्रिगिंग स्टिक्स होती हैं, वो फावड़े होते हैं, उनकी वजह से इनके थ्रू ये नॉर्मल जो खेती होती है वो प्राचीन टूल्स के थ्रू ये छोटी सी जगह पे एक खेती करते हैं और इनका जो डिपेंडिंग होता है वो मोस्ट ऑफ नेचर पे होता है क्योंकि इनकी जो कल्टीवेशंस होती हैं वो जो मॉनसून जो पानी होता है इरिगेशन की जो फैसिलिटी होती है इनके पास नहीं होती। ये मॉनसून के ऊपर डिपेंडेड होती है और साथ ही साथ ये कोई भी साइंटिफिक जो मेडिसिन होती है लाइक फर्टिलाइज़र केमिकल्स का यूज़ नहीं करते। ये लोग जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है उसके हिसाब से जो सूटेबिलिटी होती है जो सूटेबल लैंड होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इनका ये बेस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन इनके लिए अप्लाई होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्लेश एंड बर्न कल्टिवेशन। आप इसको स्लेश एंड बर्न कल्टिवेशन कह सकते हो। फार्मर्स क्लियर अ पिच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। यहाँ के जो फार्मर हैं ये फार्मर जो कल्टीवेट वाली लैंड होती है जहाँ पे ये क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं फॉर देयर फ्यूचर फैमिली के लिए वो जगह पे ये क्या करते हैं क्लीन करते हैं। अब क्लीन बाय हो सकता है वो जगह को अगर न्यू क्रॉप्स को ग्रो करना है तो उस जगह को क्या करेंगे उस जगह को क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के बाद जो थोड़ी बहुत जहाँ पे क्रॉप्स रह जाती है कटाई के टाइम पे उन क्रॉप्स के कटाई के बाद जो जगह रह जाती है उनको फिर से फर्टाइल करने के लिए उसको क्या कर देते हैं बर्न कर देते हैं जला देते हैं एंड उसके बाद फिर से उसको कल्टीवेट करके वहाँ पे क्रॉप्स को प्रोडक्ट करते हैं। When the soil fertility decrease, the farmers shift and start cultivating in the same way on the fresh patch of the land. When soil fertility decrease, जब soil की fertility कम होती है उस टाइम पे farmers जो cultivation की जो systems होती हैं उसको क्या कर देती हैं चेंज कर देती है कई और जगह पे क्या करती हैं cultivation start कर देती हैं। कुछ टाइम के बाद वो उस जगह को छोड़कर कोई और जगह को चूज़ करती हैं जिसकी वजह से लैंड की जो फर्टिलिटी कम होती जा रही है वो कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक जब बढ़ जाएगी तो फिर से वहाँ पे वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर देगी। दिस अलाउ नेचर टू replenish the fertility of the soil. Productivity in these types of farming is low as a fertilizer or modern input are not used. Productivity in these types of farming is low. यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट यूजिंग एनी फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न इनपुट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राचीन दैट में जो पुराने सिस्टम्स के टूल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं और साथ ही साथ हमारे जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे भी ये नेचर के ऊपर डिपेंडेड होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होती है कम होती है। वो उतना ही ग्रो करते हैं जितना उनकी फैमिली उसमें क्या कर सके सर्वाइव कर सकती हो। और ये जहाँ पे लैंड की प्रोडक्टिविटी दैट मीन्स उनकी जो कैपेसिटी होती है फर्टिलिटी अगर वो कम हो जाती है देन दे कैन शिफ्ट देयर कल्टीवेशन सिस्टम एंड पिच ऑफ लैंड।
यू कैन सी दिस पिक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से वो खेती के लिए कल्टीवेशंस करते हैं। पहले तो जो क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर लेते हैं, तो वो जो खेत के अंदर, जब वो फार्म के अंदर कोई न्यू क्रॉप अगर उनको ग्रो करना होता है, इससे पहले वो क्या करते हैं, उस जगह को जला देते हैं, कि जिसकी वजह से जो पुरानी जो क्रॉप्स होते हैं उनके क्या हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद वहाँ पे वो फिर से खेती करके न्यू क्रॉप्स को क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब इसका मेन मोटिव है फार्मिंग का। इंटेंशन किस चीज़ का है, जीवन निर्वाह के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसका। दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज practiced in area of high population pressure on a land. It is a labor intensive farming, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वर्क है वो लेबर के थ्रू किया जाता है, और यहाँ पे मेन मोटिव होता है फॉर farming, where high dose of the biochemical input and irrigations are used for obtaining the higher production. यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, और साथ ही साथ हायर प्रोडक्शन ऑब्टेन भी कर सकते हो थ्रू द राइट ऑफ through the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take a maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihoods. Thus there is a economous pressure on agricultural land. इन दिस पैराग्राफ मैं आपको ये बता दूं कि इनको जो आने वाले फ्यूचर है, सक्सेसिव जनरेशन, कि जिनके थ्रू जो इनहेरिटेंस लेडिंग, दैट मीन्स इनके जो पूर्वज से मिली हुई लैंड है, अगर इनका डिवीज़न किया जाए, दैट मीन्स अगर ये डिवीज़न करते हैं या तो पार्ट्स करते हैं लैंड का, तो इससे क्या होगा, दे होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकली। दैट मीन्स जो भी साइज होगा वो अनइकोनॉमिकल होगा, कि जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। फिर भी द फार्मर्स then after the farmer continue to take a maximum output from the limited land. अब फिर भी इनको जो फार्मर्स है वो कंटिन्यू और मैक्सिमम आउटपुट के लिए लिमिटेड लैंड के अंदर बहुत सारा मेहनत और एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड, दैट मीन्स लिवलीहुड, दैट मीन्स जो लोग रोजी रोटी के लिए आने वाले जो मजदूर होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनके थ्रू लिमिटेड एरिया के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं। इट्स कॉल्ड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। Thus there is an enhanced pressure on the agricultural land. फिर भी ये मानते हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर जो इनको इनहांस, दैट मीन्स जो इनको प्रेशर्स हैं, उनके थ्रू इनको एग्रीकल्चर लैंड से मैक्सिमम क्या मिल सकेगा, एज अ जॉब फैसिलिटी मिल सकती है। एंड डू यू नो दैट 12% ऑफ वर्ल्ड्स फार्म लैंड इन इज इन इंडिया। 12% जितने फार्म्स हमारे इंडिया के अंदर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से ये कल्टीवेबल जो लैंड होता है इसका आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। यू कैन लुक दिस पिक्चर, आप देख सकते हो किस तरह से है कि जहाँ पे भी अगर आपको खेती लायक, दैट मीन्स सुटेबल लैंड मिलता है, वहाँ पे आप खेती कर सकते हो, और साथ ही साथ लिमिटेड लैंड के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर कर आप अपने क्रॉप्स का क्या कर सकते हो, ह्यूज अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें कमर्शियल फार्मिंग। इट्स लेटेस्ट फार्मिंग, यू नो वेरी वेल। आज के ज़माने में बहुत सारे जितने फार्मर्स हैं वो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग higher dose of the modern input like HYV seeds, chemical fertilizer, insecticides and pesticides are used in order to obtain higher productivity. In these farmings लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे मॉडर्न
इनपुट से लेकर, सीड से लेकर, केमिकल फर्टिलाइजर से लेकर, जो प्रेक्टिसाइड्स होती है, इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, इनका यूज़ कर कर आप हायर प्रोडक्टिविटी कर सकते हो. एंड डिग्री ऑफ द कॉमर्शियलाइजेशन वेरियस फ्रॉम रीजन टू रीजन. यहाँ पे आप इस कमर्शियलाइजेशन का यूज़ करके आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रीजन टू रीजन पहुंचा सकते हो, साथ ही साथ वहाँ पे डेवलप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, राइज इन अ कमर्शियल क्रॉप ऑन अ पंजाब एंड हरियाणा, but in Orissa it is an substance crops. Substance crops that means दूसरे नंबर का, that means इनका मेन क्रॉप नहीं है. जहाँ पे अगर हम पंजाब एंड हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे ये लोग सबसे ज़्यादा राइस का क्या करते हैं, एज अ प्रोडक्शन करते हैं. बट इन ओडिशा ये इनका सब्सटेंस क्रॉप है, दैट मीन्स सेकेंड नंबर का क्रॉप, दैट मीन्स इनका ये कमर्शियल क्रॉप नहीं हुआ. अलग अलग एरिया पे अलग अलग मेन जो उनके कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल, पंजाब की बात होगी तो वहाँ पे राइस होगा, हरियाणा की बात होगी तो वहाँ पे राइस होगा. एंड अगर अलग अलग जैसे जगह पे, जैसे कि गुजरात हुआ तो गुजरात के अंदर कॉटन उनका कमर्शियल क्रॉप्स होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से कमर्शियल फार्मिंग का यूज़ हमने देखा. यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यहाँ पे जो कल्टीवेशन किया जा रहा है, ये सारी चीज़ कमर्शियल पर्पस के लिए होता है. कमर्शियल पर्पस में आप साइंटिफिक टूल्स का यूज़ करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन क्या कर सकते हो, ले सकते हो. नेक्स्ट बात कर रहे हैं फोर्थ नंबर का, प्लांटेशन. प्लांटेशन इज़ अ टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. ये सिमिलर है कमर्शियल फार्मिंग की तरह, बट कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है. क्या है? इट इज़ द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोइंग ऑन द लार्ज एरिया. आप अगर फार्मिंग की बात करो, कमर्शियल फार्मिंग की बात करो, वहाँ पे आप अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लांटेशन के अंदर कोई भी एक सिंगल क्रॉप के ऊपर आप लार्ज एरिया के अंदर उनका क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो. दिस प्लांटेशन हैज़ इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. अब प्लांटेशन ने भी हमारी एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री के अंदर क्या किया है, इंटरफियर किया है. इंटरफियर नहीं बोल सकते, पर हाँ, इन्होंने भी एक मौका दिया है इंडस्ट्री को इसमें से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन करने का. प्लांटेशंस यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ migrant laborers. All the produce is used as a raw material in respective industry. अब प्लांटेशन के थ्रू आप जितना चाहो इतना कैपिटल इंटेंसिव इनपुट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द माइग्रेंट लेबर, दैट मीन्स जो मजदूर होते हैं उनके थ्रू. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हो इंडस्ट्री को. टी प्लांटेशन इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, coffee plantation in Karnataka, banana plantation in south part of India, rubber plantation in Kerala, bamboo plantation in north east India, etc. ये सारे आपको क्या दिए गए, ये सारे एग्जाम्पल हैं. लाइक टी का तो टी का आसाम एंड नॉर्थ बंगाल हुआ, कॉफ़ी का प्लांटेशन तो केरला में हुआ, बनाना का प्लांटेशन तो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया की बात हुई, रबर प्लांटेशन की बात है तो वो केरला का हुआ, फिर बाम्बू प्लांटेशन है तो वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात हुई. यहाँ पे इनका प्लांटेशन एक सिंगल क्रॉप का लार्ज एरिया के अंदर इनका प्रोडक्शन किया जाता है, दैट मीन्स इनको ग्रो किया जाता है. और उसके बाद इनको क्या किया जाता है, फॉर सम इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया. ये सारे इम्पोर्टेंट प्लांटेशंस हैं कि जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं. और ये ग्रो होने के बाद इनका रॉ मटेरियल की तरह इनको इंडस्ट्री के अंदर भेजा जाता है. सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस लिए होता है, फॉर अ मार्केट. एज वेल, developed network of transport and communication connecting the plantation area, processing industry and market is a present. यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, किस चीज़ का डेवलपमेंट, दैट मीन्स नेटवर्किंग का.
प्लांटेशन की नेटवर्किंग ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही साथ जो कम्युनिकेशंस हैं प्लांटेशन एरिया के साथ, और साथ ही साथ इंडस्ट्री की जो प्रोसेस है और मार्केट है, इन सभी के साथ इसका नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना के रखा है। और ये सबसे पास इनको इजीली ये सुविधा दैट मीन्स सर्विस दैट मीन्स ये अवेलेबल मिले, इसके लिए बहुत सारे नेटवर्क्स दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा फैसिलिटीज़ की जाती है, कम्युनिकेशन कनेक्शन किया जाता है, साथ ही साथ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और पास में मार्केट हो इसकी भी सुविधा इनको दी जाती है कि जिस वजह से आप मैक्सिमम रॉ मटेरियल का यूज़ करके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सको, और जिसका बेनिफिट फार्मर्स को भी मिल सकता है और साथ साथ इंडस्ट्री को भी मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कैसे हमारे इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है, लाइक कॉफ़ी, एप्पल हुए, फिर ऑरेंज और शुगर केन हुआ। शुगर केन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, ऑरेंज आपको पता है नागपुर में होता है, एप्पल तो जम्मू कश्मीर में होता है, टी तो हमारे आसाम के अंदर, कॉफ़ी तो आसाम के अंदर होता है। आपको पता है हर एक रीजन वाइज अलग अलग ये प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो होते हैं, और ये नज़दीकी नियर बाई जो मार्केट होता है वहाँ पे इनको सेल किया जाता है, और वहाँ से इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।